Hello everyone. So in this video we will discuss about the Birna viridae. So without any further ado, let's get started. So simply the Birna viridae, the family have the double-stranded RNA virus with the genome having the two segments of the linear double-stranded RNA. Birna viridae includes the viruses that infects the chicken, insects, rotifers and fish. The infectious bursal disease IBD virus is the only significant veterinary pathogen. Infectious bursal disease was first recognized in 1962 in an outbreak in a Gamboro city of the Delaware. So देखो भाई, अब हम लोग बात करेंगे about the family Birnaviridae. So simply the family have the double-stranded RNA virus with a genome having the two segments of the linear double-stranded RNA. The Birnaviridae includes the viruses that will infect the chickens, insects, rotifer and fishes. देखो, अब ये जो Birnaviridae फैमिली है, इसके मेंबर्स के पास होता है डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, ठीक है। और इसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसके पास दो सेगमेंट्स होते हैं ऑफ द लीनियर डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, ठीक है। यहां तक बात क्लियर है। अब इस बिन्ना विरिडे फैमिली के अंदर जितने भी वायरसेस आते हैं दे विल इन्फेक्ट द चिकन्स, इंसेक्ट्स, रोटिफायर्स एंड फिशेस, ठीक है। So after that, the infectious bursal disease virus is only the significant veterinary pathogen. The infectious bursal disease was first recognized in the 1962 in an outbreak in the Gamboro city of the Delaware. अब देखो, ये जो फैमिली बिरना विरिडे है उसमें सिर्फ और सिर्फ हम इन्फेक्शियस बर्सल डिजीज वायरस के बारे में पढ़ेंगे बिकॉज इट इज द ओनली सिग्निफिकेंट वेटनरी पैथोजन, ठीक है। अब साथ ही साथ ये जो इन्फेक्शियस बर्सल डिजीज वायरस है ये एक डिजीज कॉज करता है दैट इज नोन एज इन्फेक्शियस बर्सल डिजीज। और इन्फेक्शियस बर्सल डिजीज का सबसे पहला केस 1962 में गम्बोरो सिटी डिलावेयर में पाया गया था, ठीक है। Now moving on, we will discuss about the viral characteristics. So simply it is non-enveloped with the icosahedral symmetry approximately of 60 nanometer in diameter. The genome is approximately 6 kilobase pair and consists of the two molecules of the linear double-stranded RNA designated as A and B. The segment A contains two open reading frames. The smaller one encodes for VP5 protein while the largest encodes a polyprotein that is processed to form two structural proteins VP2 and VP3 and a viral protease designated as VP4 or NS depending on the virus that autocatalytically cleaves the polyprotein. The major capsid protein VP2 contains the principal antigenic site responsible for eliciting neutralizing antibodies and is responsible for the cellular tropism and the binding. The inner capsid protein VP3 contains group-specific antigenic determinants and a minor neutralizing site. The segment B encodes VP1 which is a RNA polymerase. So देखो भाई, अब हम लोग बात करेंगे about the viral characteristics. So simply it is non-enveloped with the icosahedral symmetry approximately of 60 nanometer in diameter. देखो, ये जो फैमिली है बिरना विरिडे इसके अंदर जितने भी वायरसेस आते हैं वो सारे ही नॉन एनवेलप्ड होते हैं, साथ ही साथ उनपे आइकोसाहेड्रल सिमेट्री होती है जिसका साइज अराउंड 60 नैनोमीटर इन डायमीटर होता है, ठीक है। आफ्टर दैट the genome is approximately 6 kilobase pair and consists of the two molecules of the linear double stranded RNA designated as A and B. अब देखो, बिन्ना विरिडे फैमिली में जितने भी वायरसेस आते हैं उनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो अराउंड 6 किलोबेस पेयर का होता है, ठीक है। जिसके पास दो मॉलिक्यूल होते हैं लीनियर डबल स्ट्रैंडेड आरएनए के और इन दो लीनियर मॉलिक्यूल्स को हम क्या कहते हैं, ए एंड बी, ठीक है। After that, the segment A contains the two open reading frames. The smaller one encodes for the VP5 protein while the largest encodes a polyprotein that is processed to form two structural protein VP2 and VP3 and a viral protease designated as VP4 or NS depending upon the virus that autocatalytically cleaves the polyprotein. देखो भाई, मैंने आप सभी को बताया था कि जो बिरना विरिडे फैमिली है उसके वायरसेस के पास उसके जेनेटिक मटेरियल में दो मॉलिक्यूल्स होते हैं ऑफ द लीनियर डबल स्ट्रैंडेड आरएनए जिनको हम क्या कहते हैं, सेगमेंट ए एंड सेगमेंट बी, ठीक है। अब देखो,
मान लो कि ये सेगमेंट ए है। अब इस सेगमेंट ए के पास दो रीडिंग फ्रेम्स होते हैं, एक होता है स्मॉलर रीडिंग फ्रेम और एक होता है लार्जर रीडिंग फ्रेम। मतलब आप इसको दो तरफ से इसके कोडिंग को पढ़ सकते हो, ठीक है। अब ये जो स्मॉलेस्ट रीडिंग फ्रेम होता है ये कोड करता है फॉर द VP5 प्रोटीन, ठीक है। और ये जो लार्जेस्ट रीडिंग फ्रेम होता है इट विल कोड फॉर द पॉलीप्रोटीन। अब ये पॉलीप्रोटीन कन्वर्ट हो जाता है किसमें, दो स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स दैट इज VP2 एंड VP3। साथ ही साथ इट विल आल्सो प्रोसेस टू फॉर्म द वायरल प्रोटीएस जिसको हम VP4 के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। Moving on, the major capsid that is VP2 contains the principal antigenic site responsible for eliciting the neutralizing antibodies and is responsible for the cellular tropism and binding. So देखो भाई, मैंने अभी तक आपको बताया कि फैमिली बिरना विरिडी के अंदर जितने भी वायरसेस होते हैं उनके जेनेटिक मटेरियल में दो लीनियर मॉलिक्यूल और डबल स्ट्रैंडेड RNA प्रेजेंट होते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, सेगमेंट ए और सेगमेंट बी, ठीक है। ये जो सेगमेंट ए होता है ये काफी ज्यादा प्रोटीन्स के लिए कोड करता है जैसे कि वायरल प्रोटीन 5, वायरल प्रोटीन 2, वायरल प्रोटीन 3 एंड वायरल प्रोटीन 4। अब ये जो वायरल प्रोटीन 2 होता है इसके पास एक एंटीजेनिक साइट प्रेजेंट होती है जो कि हेल्प करती है वायरस को टू अटैच विद द होस्ट सेल्स, ठीक है। साथ ही साथ ये जो एंटीजेनिक साइट है ये प्रिवेंट करती है वायरसेस को फ्रॉम द न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय द इम्यून सिस्टम ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म। सो देखो भाई, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि सिंपली जब भी किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में कोई भी फॉरेन पार्टिकल एंट्री करता है, चाहे वो वायरस हो चाहे बैक्टीरिया हो, तब उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और कुछ एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन करता है ताकि वो एंटीबॉडीज जाके उस पर्टिकुलर वायरल और बैक्टीरियल फॉरेन पार्टिकल्स को न्यूट्रलाइज कर सके, मार सके, ठीक है। लेकिन बिरना विरिडे फैमिली के वायरसेस के पास एक मेजर कैप्सिड और वायरल प्रोटीन होता है जिसका नाम है VP2। ये पर्टिकुलर प्रोटीन के पास जो एंटीजेनिक साइट होती है, पहली बात तो ये हेल्प करती है वायरस को टू अटैच विद द होस्ट सेल, साथ ही साथ ये प्रिवेंट करती है वायरस को फ्रॉम दोज एंटीबॉडीज दैट विल ट्राई टू किल दिस पर्टिकुलर वायरस, ठीक है। So after that, the inner capsid protein that is VP3 contains a group specific antigenic determinant and a minor neutralizing site। अब देखो, मैंने आपको बताया था कि जो सेगमेंट ए है ये काफी ज्यादा वायरल प्रोटीन्स के लिए कोड करता है जैसे कि VP5, VP2, VP3 एंड VP4। अब ये जो VP3 वायरल प्रोटीन है इसके पास क्या होता है, एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स। एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स को हम एपिटोप के नाम से भी जानते हैं जो कि बेसिकली किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में उसके इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करने में हेल्प करते हैं। साथ ही साथ दिस VP3 आल्सो कंटेन्स सम माइनर न्यूट्रलाइजिंग साइट, ठीक है। आफ्टर दैट द सेगमेंट बी encodes फॉर द VP1 व्हिच इज अ RNA पॉलीमरेज। अब देखो, सिंपली मैंने आपको ये भी बताया था कि फैमिली बिरना विरिडी के अंदर जितने भी वायरसेस होते हैं उनके जेनेटिक मटेरियल में दो मॉलिक्यूल्स ऑफ द लीनियर डबल स्ट्रैंडेड प्रेजेंट होता है जिसको हम सेगमेंट ए और सेगमेंट बी के नाम से जानते हैं, ठीक है। सेगमेंट ए के प्रोटीन्स तो मैंने आपको बता दिए। अब ये जो सेगमेंट बी होता है इट विल इनकोड फॉर द VP1 और वायरल प्रोटीन 1 जो कि बेसिकली क्या है, एक RNA पॉलीमरेज, ठीक है। Moving on, the replication of the virus takes place in the cytoplasm and the viruses are stable, resisting heat and a wide range of the pH। सो देखो भाई, हम लोग बात कर रहे थे अबाउट द वायरल कैरेक्टरिस्टिक, तो उसी में आगे बढ़ते हैं। सिंपली द रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस इन द साइटोप्लाज्म। अब ये जो बिरना विरिडे फैमिली के अंदर वायरसेस हैं इनका रेप्लिकेशन कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म में। एंड द वायरसेस आर स्टेबल, रेजिस्टिंग हीट एंड द वाइड रेंज ऑफ द pH। अब ये जो वायरसेस होते हैं अंडर द बिरना विरिडे फैमिली ये कैसे होते हैं, नॉन इन्वेलप्ड एंड दे आर स्टेबल इन नेचर, दे कैन टॉलरेट द wide range of the pH as well as they are resist to the heat, ठीक है। Moving on, we will discuss about the classification of the family Birnaviridae. So simply the family Birnaviridae contains the three genera. The first one is the Aquabirna virus that includes the virus that will infect the fish, crustaceans and mollusk. Included is the virus that causes the infectious pancreatic necrosis of the salmon fish, was first described in 1941 among the rainbow trout in North America.
although the viral etiology was not established until the 1950s. The second genre is the entomobirnavirus that includes the viruses that will infect the insects. देखो भाई, अब हम लोग बात करेंगे अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ द फैमिली बिरनाविरिडे. सिंपली द फैमिली बिरनाविरिडे कंटेन्स द थ्री जेनेरा. अब ये जो फैमिली है बिरनाविरिडे, इसके अंदर तीन जीनस आते हैं, ठीक है. एंड द फर्स्ट जेनेरा इज द एक्वा बिरना वायरस. सिंपली इट इंक्लूड्स द वायरस दैट विल इन्फेक्ट द फिश, crustacean and mollusk, and included is the virus that will cause the infectious pancreatic necrosis in the salmon fish and was first described in the 1941 among the rainbow trout in the North America, although the viral etiology was not established until the 1950s. देखो भाई, सिंपली एक्वाबिरना वायरस जेनेरा के अंदर ऐसे वायरस आते हैं जो कि फिशेस, क्रस्टेशियंस और मॉलस्क को इन्फेक्ट करते हैं. साथ ही साथ इस जीनस के अंदर ऐसे भी वायरस आते हैं जो कि सैल्मन फिशेस में इन्फेक्शियस पेनक्रियाटिक नेक्रोसिस की कंडीशन को डेवलप करते हैं. एंड सबसे पहला केस ऑफ द इन्फेक्शियस पेनक्रियाटिक नेक्रोसिस 1941 में रेनबो ट्रॉट नॉर्थ अमेरिका में हमें मिला था. लेकिन 1950s तक एक्चुअल वायरल ईटियोलॉजी की एक्चुअल पॉजिटिव एजेंट क्या है ऑफ दिस पर्टिकुलर इन्फेक्शियस पेनक्रियाटिक नेक्रोसिस इन सैल्मन फिशेस हमें पता नहीं लग पाया था, ठीक है. After that, the next genera is entomobirnavirus that includes the viruses that will infect the insect. अब ये जो नेक्स्ट जेनेरा है जिसका नाम है एंटोमोबिरनावायरस, इसके अंदर ऐसे वायरस आते हैं जो कि इंसेक्ट्स को इन्फेक्ट करते हैं, ठीक है. Moving on, the third genera is the Avibirnavirus that infects the birds. Only one species, the virus causing the infectious bursal disease, is recognized. There are two serotypes of the IBD virus. The serotype 1 causes the IBD in the chickens only, and the serotype 2 that are not pathogenic. Asymptomatic infections have been reported frequently in the chickens and the turkeys. देखो भाई, हम लोग बात कर रहे थे अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ द फैमिली बिरनाविरिडे. अब उसके अंदर नेक्स्ट जेनेरा आता है एविबिरनावायरस दैट विल इन्फेक्ट ओनली द बर्ड एंड ओनली वन स्पीशीज. द वायरस कॉजिंग द इन्फेक्शियस बर्सल डिजीज इज रिकॉग्नाइज्ड. देखो, बेसिकली ये जो एविबिरनावायरस जीनस है, इसके अंदर सिर्फ एक ही वायरस आता है जिसकी वजह से इन्फेक्शियस बर्सल डिजीज की कंडीशन डेवलप होती है एंड दिस पर्टिकुलर वायरस विल इन्फेक्ट द बर्ड ओनली, ठीक है. ये जो इन्फेक्शियस बर्सल डिजीज है, इसका पॉजिटिव एजेंट क्या होता है? इन्फेक्शियस बर्सल डिजीज वायरस, ठीक है. मूविंग ऑन, देयर आर टू सीरोटाइप्स ऑफ द आईबीडी वायरस, the serotype 1 and serotype 2. The serotype 1 causes the IBD in the chickens only, and serotype 2 is not pathogenic, and asymptomatic infections have been reported frequently in the chickens and the turkeys. देखो भाई, ये जो सिंपली इन्फेक्शियस बर्सल डिजीज वायरस है विच इज द पॉजिटिव एजेंट ऑफ द इन्फेक्शियस बर्सल डिजीज, इसके पास दो सीरोटाइप होते हैं, सीरोटाइप 1 और सीरोटाइप 2. अब ये जो सीरोटाइप 1 होता है, इट विल इन्फेक्ट द चिकन्स ओनली एंड डेवलप द कंडीशन ऑफ द इन्फेक्शियस बर्सल डिजीज. और जो सीरोटाइप 2 होता है, ये एक नॉन पैथोजेनिक सीरोटाइप होता है. इसका मतलब क्या हुआ? अगर कोई बर्ड सीरोटाइप 2 से इन्फेक्टेड होती है तो वहां पे कोई क्लिनिकल कंडीशन डेवलप नहीं होगी. और अगर किसी भी पर्टिकुलर बर्ड में सीरोटाइप 2 का इन्फेक्शन हो गया तो वहां पे एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन डेवलप होगा, कोई भी सिम्टम्स आपको दिखाई नहीं देंगे डिजीज के. और सीरोटाइप 2 का इन्फेक्शन अक्सर आपको चिकन्स और टर्की के केस में देखने के लिए मिलता है, ठीक है. So that's all for this video. We will meet very soon in the next one.